we'll record this session so that we will try to upload it also on the website so that other participants, other entities who have not participated can also benefit from it. Okay, okay. So actually, I have multiple questions. Okay, so let me start with the one. So for M1, okay. Arjun, one second. You need to So introduce yourself and you let your entity name just now as I shared, and please share your Sandbox Client client ID ID. in okay, the chat. This is okay, very okay. important. So yeah, this said Arjun Kumar. Kumar. Okay, I'm from Health, and our client ID okay is SBX underscore 004602. Okay. Can you put it on the chat also, please? Sure, sure. Your entity name, your name, entity name, and client ID. Yes, you can start with your, if you have shared that on the chat, you can start with your query, please. Yeah, I'm doing. So for M1, okay, if the user comes to onboard, okay, for creating the Aadhaar number, okay, and if he gives the Aadhaar number, but that Aadhaar number doesn't have any mobile number linked, okay, so in that case, what should we do? Could you hear him, Sachin? I could not hear his voice. Could you hear him? Sir, for this case, mobile number Aadhaar authentication is mandatory. Okay. Mm-hmm. So, when the patient is not having their mobile number attached to their Aadhaar, first of all, it will happen in very rare cases, right? Mm-hmm. Most of the people will have mobile number. So apart from this OTP method, we have face auth and biometric option as well for Aadhaar authentication. So what user can do, user can open their ABHA app. They can Mm-hmm. create their ABHA number using face auth in our ABHA production app, and then Okay. you can use the ABHA number in your system. Okay, okay, okay. Got it. Got it. Okay. So the one more question. Okay. We get a callbacks. Okay, from the ABDM. Okay, and how we validate. Okay, that this call is a legitimate and not a spam. So you can check the endpoints. If So the endpoint is you already know all of the our endpoint, right? mhm. In the documentation we have, and in Sandbox also we try. So Okay. if the call is coming from the correct endpoint, then you will know. So okay, one thing that we saw. Okay, in the header we get a token. Okay, so can we use that token? How we validate that token on our end, just to make sure that this is not a spam call and the valid call. Just give me 1 second. Let me check first. You are talking about which token? So whenever we get a call back, okay, we get Mhm. a authorization token also, right, from the ABDM in many of the calls. Okay. क्या बात कर रहे So for example, let's say there was a discover call, okay, and we got a call care context slash discover, okay, and if I'm seeing that we got a header, okay, which has a token, barrier token, okay, I think that's a JWT token only, okay. So to validate that this request has been coming from the ABA only, okay, the ABDM, okay. So can we use this token to authenticate that? So if yes, then how अर्जुन we can? अर्जुन यार आपके पीछे से बहुत आवाज आ रही है या तो आप मैम को बोलो कि वहाँ चुप रहे हम It's कैसे not समझ from पाएंगे mine actually. Yeah, sorry, it's not from mine actually. Uh, किसके आपके यहीं से आ रही है ना क्योंकि आपके माइक से let आवाज आ रही है वो let me mute and we can confirm that if it's from mine. हाँ आपकी साइड से ही है No, no, चेक I'm not on mute now. So this first. इसकी साइड से वो आवाज आ रही है एक्चुअली So it's better ना अभी नहीं आ रहा right? नहीं अभी नहीं आ रही So yeah, actually I'm not on mute then मेरे से नहीं था. Cool. Okay. So yeah, Sachin ji, you got my question right and also explain कि हाँ वो token हमको मिलता है header में and how can we so is there any way that we can validate it? नहीं, दूसरे वाले टोकन की बात कर रहे हो आप फिर से बताइए मुझे ओके सो फॉर एग्जांपल अभी एक डिस्कवरी कॉल का मुझे कॉल बैक आया दैट वी आर लॉगिंग ओके एंड डिस्कवरी का ऑन डिस्कवर आया आपके पास राइट हाँ नहीं नहीं डिस्कवर वाला हाँ डिस्कवर आया राइट आपके पास ओके आया एंड आई एम फिर उसमें रिक्वेस्ट बॉडी मिली सही है ठीक है एक हेडर भी मिला ठीक है और हेडर में एक पैरामीटर राइट ऑथोराइजेशन और बैरर टोकन करके बैरर है फिर टोकन राइट का राइट वैल्यू है ठीक है राइट राइट तो ये टोकन हमको हर एक बार मिलता है राइट व्हेन वी गेट अ कॉल फ्रॉम द एबीडीएम हर नहीं बार कोई मिलता है जरूरी नहीं है वो डिपेंड करता है आप एक काम कीजिए यहाँ पे क्लाइंट आईपी लिखा हुआ है हमारा राइट आपके हम्म हेडर्स में बॉडी में आता है क्लाइंट आईपी
आप इससे वैलिडेट करिए, क्योंकि आपको आई थिंक हो सकता है ये क्लाइंट आईपी भी हमारी वाइट लिस्ट करनी पड़ेगी। तो दिस इज वैलिड फ्रॉम 14.143.232 एंड 140। दिस इज अ ओके क्लाइंट आईपी विच इज लाइक सेंड बाय आवर साइड। ओके, सो एक ये वन वे, और कोई वे है जिससे हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं You can, कि one second, hold on, Arjun. You can share your screen and you can show it so that other participants can also join. Can you share your screen, please? जस्ट श्योर, अ मिनट, लेट मी डू दैट। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। Okay, I'll just share the screen. Yeah, this is the my screen visible right now? या Yeah. तो ये क्लाइंट आईपी आती है जो बॉडी में आएगी आपको। अ, हर एक कॉल जो हमारी आएगी वो इसी क्लाइंट आईपी से आती है। आप लाइक कोई भी कॉल चेक कर लीजिए, रिमेनिंग अदर्स आल्सो। ओके या दिस इज द, ये रहा बॉडी में एक क्लाइंट आईपी, ये रहा। चाहे आपको एरर आती है, कुछ भी आता है, तो आपके पास ये क्लाइंट आईपी आती है। इज द सेम फ्रॉम आवर साइड। कि यू आर सेइंग कि ये बॉडी में आएगी हमको, राइट, फॉर हाँ, कॉल। आपको पूरा पैरामीटर आएगा ना, ये तो पूरा पैरामीटर से ज्यादा है ना। उसमें ओके कॉल बैक ओके में। ओके, ये हर एक कॉल्स में आएंगी या फिर स्पेसिफिक कॉल्स में आती है क्लाइंट नहीं आईपी? नहीं, हर एक कॉल्स पे आती है क्लाइंट आईपी। ओके, बिकॉज अभी जो मैं देख रहा हूँ ना उसमें आई एम नॉट हैविंग दैट क्लाइंट वाला। नहीं, आपका होगा, आप चेक कीजिएगा, आपके इवेंट के अंदर आएगा ये। ओके सॉरी, इवेंट नहीं, बॉडी के अंदर आएगा आई थिंक। या ओके के ओके साथ में आ आई जाएगी। ओके आई ठीक है। विल चेक दैट। एनीथिंग एल्स आपके फ्रॉम योर साइड? Arjun, यस। let us pause here one second. Any ओके other participant who has a doubt related to this query? Okay. Yeah, you can proceed, Arjun. ओके ओके, सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन, राइट, कि अभी पेशेंट ऑनबोर्ड हो गया, उसने आबा क्रिएट कर लिया, राइट, ऑल गुड। सो नाउ ओके, एंड जब हमको लिंकिंग टोकन जनरेट करना होता है तो वी यूज अ डेमोग्राफिक वाला एपीआई। अर्जुन अर्जुन अर्जुन, इसके लिए आप M2 का वेबिनार ऑलरेडी है। ये बेसिकली जो क्वेश्चन है उनके लिए वेबिनार ऑलरेडी, आप उनको एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे वो बेटर रहेगा जो क्वेश्चन लाइक कॉमनली है, क्योंकि ये आई थिंक ये द क्वेश्चन रिलेटेड टू लाइक। नहीं नहीं, इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ समवन ओके कुछ अपना वो केवाईसी अपडेट करता है, फॉर एग्जांपल वो उसके नेम में आई था, अभी उसने डबल ई कर लिया, ओके, हाँ हाँ। सो उस केस में हाउ केवाईसी कैन। अगर अपडेट होगा तो आपको वेरीफाई दोबारा करना पड़ेगा। आपको पेशेंट से उसका आधार एड्रेस पूछना है हर केस में। ओके ओके राइट। ओके, तो रिवैलिडेट करना रहेगा, राइट, उसको फिर अगेन आप है ना ऑब्वियसली। उसकी जो भी इंफॉर्मेशन। ओके राइट। ओके। ओके श्योर। थैंक्स अर्जुन। नेक्स्ट। हेलो। हाँ हेलो। जी, हाँ जी, बताइए। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि नहीं, हम पहले जब आप चैट में डाल दीजिए एक बार अपना क्लाइंट डाल आईडी दी वगैरह। डाल दी डाल दिया क्या है आपका आपका नाम क्या है? कि Because your आई एम name is केयूर फ्रॉम reflecting कोकोरो as भारत। अच्छा, अरे एक मिनट। कोकोरो भारत से जो भी है, सारे पार्टिसिपेंट तो एक साथ में वन बाय वन क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा, राइट, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोकोरो भारत से काफी लोग हैं यहाँ पर। तो राइट। ओके। जिसको क्वेरी होगी हम हैंड रेज करके पूछ लेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कयूर कोकोरो भारत से ही है, उनकी क्वेरी है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हम ओथ फेथ ओथ मोड का कॉल बैक हमें मिलता है ऑन फेथ मोड पे, ठीक है। हाँ जी। हाँ हाँ, तो उसको हम कैसे वैलिडेट करेंगे कि ये कौन से मतलब कौन से फैसिलिटी ने कौन से पेशेंट के बिहाफ पे फेथ मोड किया है। नहीं, फैच मोड तो आप खुद करते हैं ना, फैसिलिटी खुद ही फैच मोड करती है। आप किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, फैसिलिटी ने फेथ मोड किया तो उनको उसका कॉल बैक हमें मिला ऑन फेथ मोड। उसका जो बॉडी मिला वो हमने डेटाबेस में स्टोर करा ली। अच्छा, मैं फिर समझ फिर गया। आप वो, कह रहे हैं कि एक क्लाइंट आईडी के ऊपर यदि मल्टीपल एचआईपी हैं तो आप कैसे करेंगे। हाँ तो सर, जो हाँ कॉलबैक जो आता है ना, उसके हाँ। अंदर बॉडी एक बार आप शेयर कीजिए अपना कॉलबैक जो आपका, वो दिखाइए, मैं बताता हूँ आपको। अपना शेयर कर ले। तो ऐसा मेरे को टाइम लगेगा थोड़ा।
आप अपने में दिखा सकते हो क्या? हाँ, मैं दिखाता हूँ एक बार, मैं API हिट कर नहीं, लेता आप हूँ। खोल के दिखाइए। आप एक बार खोल के दिखाइए, बिकॉज वी वांट टू सी व्हाट यू आर डूइंग, यू माइट नॉट बी डूइंग समथिंग राइट। आप एक बार अपने स्क्रीन पे दिखाइए। क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ रिजॉल्व करना है ना, तो हो सकता है आप कुछ रिक्वेस्ट बॉडी में गलत डाल रहे हो, या कुछ कुछ पेलोड गलत है शायद आपका। आप थोड़ा दिखाइए। Chintan, meanwhile, you can share your entity name and your client ID so that, next we can start with your query. Thanks, Chintan. जब आपको दिखाने में लेट है तो फिर मैं चिंतन का क्वेरी टेकअप कर लेती हूँ। आप जब अपने स्क्रीन के साथ रेडी होंगे तो आप बताइएगा, देन वी विल कम बैक टू यू। ओके। ओके ओके ओके। यस चिंतन, प्लीज प्रोसीड। Yeah, good afternoon, ma'am. हम्म। Ma'am, I have a basically one or two questions regarding the updated M1 test cases, in which include the verification method, which is ABA verification, and the mobile verification, which is updated on current latest month. Okay, from the 1st March. So, ma'am, I have a one query regarding the mobile updation in the ABDM side. So in the test cases, it was mentioned when we are uh, link sorry, the verify the ABA number with the ABA address. Then in the test cases, it is mandatory that if the user uh, updates their mobile number in the HMIS, then it is advisable to provide the user with the option to update their mobile number as well as in the ABA profile. But in the same test cases, when we saw the detail uh, below, then it is showing that the mobile number updation option is a optional. So what should we consider here? Should we go for the update option or should we go for it is optional? मुझे समझ में नहीं आया, एक बार आप शेयर करिए स्क्रीन। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं यस। सब आप शेयर कर दो, मैं समझ नहीं, जो चिंता नहीं, क्या है ना, इट इज रिकमेंडेड राइट, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आपका जो प्रोफाइल है आपके एचएमआईएस में सब जगह अपडेटेड रहे, राइट। तो ये करेक्ट। मैंडेट नहीं किया है हमने टेस्ट केस। We ओके cannot ओके। mandate this test case, right? But we will always advise, or we will always recommend that you follow this. तो optional test cases देते हैं हम, but we always recommend कि आप अच्छा सिस्टम बनाना है, seamless सिस्टम बनाना है, so you have to follow this, and it is always advisable ना। आप अपना HMIS में करेक्ट। आपने कल को मोबाइल चेंज कर लिया, आपने सिस्टम में नहीं चेंज किया, तो गलत हो जाएगा ना। फिर कल को आपका पेशेंट जब वैलिडेट करने आएंगे, आप वैलिडेट करोगे उनका आभा एड्रेस, मोबाइल और ओटीपी लेके, वो तो कभी वैलिडेट ही नहीं होगा मोबाइल ओटीपी से, एंड यू विल बी थिंकिंग व्हाई इट इज नॉट गेटिंग वैलिडेटेड। करेक्ट। गॉट इट? Got it. या Ma'am, one more query over here. The same thing जो API दिया है यहाँ पे, that is not available in the V3. उसके endpoint नहीं है इसके अंदर, ये postman एक बार collection। टेस्ट केस दिखाइए, कौन सा वाला है ये? Uh, प्रोफाइल ये है अपडेट। मोबाइल अपडेट। नहीं है सर, ये V3 में है। सर हमने चेक किया, उसके endpoint नहीं है V3 में। एक सेकंड दीजिए, मैं आपको एंड पॉइंट चैट में डालता हूँ। हाँ। नहीं, ये एंड पॉइंट डाल रखा है सर, ये एंड पॉइंट ही तो दिखा रहे हैं आप। सर ये सर एंड ये पॉइंट ही है। दिस इज द एंड पॉइंट राइट, प्रोफाइल स्लैश अकाउंट स्लैश रिक्वेस्ट, दिस इज यस फॉर यस V3 यस ओनली, दिस इज फॉर V3 यस, बट ओनली। वो ये सर पोस्टमैन कलेक्शन में नहीं है V3 के अगेंस्ट में। इफ यू सी द पोस्टमैन ओके, कलेक्शन आप एक V3, बार, हाँ, आप मैं उसमें ना अवेलेबल आपको, नहीं है। आप ना इंटीग्रेशन डॉट सपोर्ट पे मेल डालिए, उसमें हम आपको दे देते हैं ना। ओके 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 सर, थैंक यू। उसमें आप टेस्ट केस लिखना अच्छे से कि फॉर दिस श्योर। टेस्ट केस आई नीड द एडिट। ओके 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 एनीथिंग एल्स? हेलो। हेलो। या क्या? हेलो, या क्या बताइए? हाँ हाँ, मैं स्क्रीन शेयर अपना कर रहा हूँ। या प्लीज।
ये ऑन फेच फेच मोड मिला मुझे, ठीक है। इसके अंदर देखिए जहाँ पे ऊपर है ना XHIP ID, ये आपके HIP का नाम है। अच्छा, हमको फिर बॉडी के साथ साथ पूरा हेडर भी स्टोर करना पड़ेगा, है ना? हाँ जी। पूरा रेस्पॉन्स होता है जिसमें हेडर भी आता है, बॉडी भी आती है आपकी। जैसे आप रिक्वेस्ट कॉल करते हो ना, तो वहाँ हेडर भी भेजते हो, आप बॉडी भी भेजते हो। इसी टाइप से एक पूरा एक इंजन है। ओके। ओके। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि हम पेयर कंटेक्ट लिंक हो गया हमारा। उसके बाद जो बंडल हमें HHIR बंडल में कन्वर्ट करके भेजना होता है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसको कन्वर्ट कैसे करें। तो वेबिनार था, उसमें कुछ जावा का टूल यूज किया हुआ था, और वी आर बिल्डिंग फुल सिस्टम इन नोड बेस, तो हम उसको नोड में कैसे मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे? फिर आप एक काम ये जो कीजिए, जो एल्गो जावा में जो एल्गो यूज हुई है, लाइक जो कोड यूज है, आप उसको उसको नोड जेएस में आप कन्वर्ट करके उसी लाइक उस टाइप की एल्गो बनाइएगा। कोड तो हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते ना इधर से। तो मतलब जो इंक्रिप्शन का पूरा जो सिस्टम है वो हमें अपने एंड पे खुद बनाना पड़ेगा ना? सर, फायर बंडल बनाना और एन्क्रिप्ट करना दो अलग अलग चीजें हैं। तो फायर बंडल बनाने के लिए ना आपको खुद ही कोड लिखना है, और उसमें जो वेबिनार में भी जो जावा के लिए दे रखा है, वो कोई कोड हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन है फॉर फायर के अंडरस्टैंडिंग। तो वहां से आप एक फायर के अंडरस्टैंडिंग लीजिए कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। वो आपको अपना खुद का लॉजिक लगा के ही ऐड करना है। वो कोई बिल्डर नहीं होता कि आपने कुछ इनपुट डाला और आपका फायर बना दिया उसने। सब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना कोड लिखते हैं और अपना फायर बंडल बनाते हैं। तो क्योंकि हमारा वहीं पे अटका हुआ है, तो मेन क्वेरी तो यही था हमारा। हाँ जी। नहीं नहीं, ये कोई सर्विस नहीं होती है कि आप कुछ इनपुट डालेंगे और आपका बंडल बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो जस्ट एक फायर की अंडरस्टैंडिंग लेनी आपके लिए जरूरी है, ताकि आप जो कंपोनेंट्स हैं फायर के, फॉर एग्जांपल कंपोजिशन क्या होता है, प्रैक्टिशनर क्या होता है, पेशेंट क्या होता है, और ये सब चीजें HI टाइप में, डिफरेंट HI टाइप में कौन कौन सी चीजें होती हैं, वो आपको फिर सिंपल कोड करके वो चीजें बिल्ड करनी है, और आपका ही इंफ्रा रहेगा। आप ही को मैप करना है कि कैसे आप DB से उन फील्ड्स को मैप करेंगे। तो वो आपके ही एफर्ट्स हैं सर ये। ओके। तो जो उसमें जो एंक्रिप्शन के लिए जो प्राइवेट की पब्लिक की वगैरह की वो APIs बनी दूसरा है, वो चीज है। सब हम। जैसे एक बार जब आपका बंडल बन जाएगा ना, उसके बाद ओके। इंक्रिप्शन नेक्स्ट स्टेप होता है। उसके अंदर आप सर्विस यूज करेंगे जो कि गिटहब के ऊपर जो कोड दिया हुआ है जावा का, आप उस कोड को डिप्लॉय करके वो सर्विस यूज कर सकते हैं। बट फायर वो बंडल बनाने के लिए नहीं है, वो जस्ट इंक्रिप्शन के लिए है। और ओके, उसमें अगर आपकी बंडल एक बार डिपेंडेंसी नहीं है कि नोड है वगैरह कुछ है। उसमें आपको कोई कोड तो लिखना नहीं है, तो आप वो जावा वाले को भी होस्ट करके और उसको यूज कर सकते हैं। ओके, एक बार हमारा बंडल बन जाए तो जो गिटहब पे हमें जो इंक्रिप्शन का कोड है उसको हम अलग से हाँ, होस्ट उसको करके हाँ, उसको अलग से सर्विस यूज होस्ट कर करके सकते उसको यूज करना है आपको, ठीक है। हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कोई है? आई डोंट सी मेरी एनी। एक एक क्वेरी थी मेरी। एक्चुअली मैं अनुराग बोल रहा हूँ, कोकोरो बोलिए। भारत से ही। कहाँ से? कोकोरो भारत से ही बात कर रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा मतलब डाउट था, वो क्लियर हो जाएगा तो रहेगा। मैं ये कह रहा था M2 M3 यूजर एंड डॉक्टर बोथ साइड इंप्लीमेंट करना है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। देखिए, ये क्या है ना, जो आपका M1 है ना, M1, आप M1 का फ्लो है कि आप उसमें आभा क्रिएट करते हो, वेरीफाई करते हो। तो ये ना, करेक्ट। जो प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर एंड पे होता है। पेशेंट भी खुद कर सकता है आभा क्रिएट, ठीक है। लेकिन जो है, जब पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने, तो आप उसको रजिस्टर करवाते हो कि नहीं? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है पेशेंट का, राइट? आज के डेट हॉस्पिटल में में होता शायद, है, हाँ। बिल्कुल होता है एक हाँ, तो रजिस्ट्रेशन आईडी प्रोवाइडर क्रिएट प्रोवाइडर करता है हर मतलब एक यहाँ पे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, डॉक्टर जो आप ले लीजिए, ठीक है। सो आप रजिस्ट्रेशन करते हो विच इज जनरली बाय मोबाइल। तो हम्म। हम बोल रहे हैं कि आप जब रजिस्टर करते हो तो पेशेंट को रजिस्ट्रेशन वाया आभा नंबर, आभा एड्रेस क्रिएट करवा के भी करो आप। एंड नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट आए आपके पास, तो आप सिर्फ उसको वैलिडेट आभा एड्रेस से करवा लो, दैट्स इट। या फिर उसका प्रोफाइल QR कोड स्कैन करके आप वेरीफाई करा लो। वेरीफाई का आप जो मेथड रखो, दैट इज अप टू यू, राइट?
अब M2 पे आते हैं। तो M2 क्या होता है? M2 इज आपका कि आप रिकॉर्ड जो अपना डिजिटल रिकॉर्ड बनाते हो, अपने प्रोवाइडर बनाता है अपने सॉफ्टवेयर में, चाहे वो HMIS हो, LMIS हो, RIS हो, कुछ भी हो, राइट? आप डिजिटल रिकॉर्ड को उस पेशेंट के आभा एड्रेस से लिंक करोगे। तो ये वाला तो प्योरली आपके प्रोवाइडर साइड में हो गया, करेक्ट? इसी का एक पार्ट होता है कि पेशेंट का रिकॉर्ड पेशेंट देखना चाहेगा, तो आप जनरली क्या करते हो? प्रोवाइडर्स एक कॉपी देते हैं उनको, है ना? सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, पेशेंट के पास भी डिजिटल कॉपी रहे, तो हमने इसकी सुविधा कैसे उसको दी है कि हमने एक ऐप है जो PHR ऐप बोलते हैं, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड ऐप, राइट? हमारा Just like a DigiLockers. नो, डिजी लॉकर इज जस्ट अ लॉकर, Okay. ठीक है अनुराग जी? हियर वी हैव गिवन अ ऐप विच वी कॉल एज पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड ऐप। हमने NHA ने जो बनाया है दैट इज आभा ऐप, करेक्ट? कोई और आप बनाओगे तो आप अनुराग ऐप नाम रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसकी फंक्शनैलिटी यही होगी कि जो पेशेंट गया कहीं पे भी हॉस्पिटल में, तो वो इस PHR ऐप में अपना रिकॉर्ड देख सके एज एंड व्हेन ही और शी प्लीजेस। जब भी वो रात के 12 बजे भी चाहे तो भी खोल के अपना रिकॉर्ड करके देख सकता है। सो M2 इज ऑल्सो ऑन प्रोवाइडर एज वेल एज पेशेंट के साइड, दो फ्लो होता है इसमें, है ना? ठीक है। और M3 जो होता है, M3 इज अगेन आपका जो दो प्रोवाइडर्स के बीच में एक्सचेंज होता है, राइट? अगर मैं एक हॉस्पिटल में गई, से अनुराग हॉस्पिटल में मैं गई, इसके पहले मैं पूरे टाइम चिंतन हॉस्पिटल में दिखाती थी, राइट? तो अनुराग हॉस्पिटल में मेरे को डॉक्टर अनुराग ने कहा कि आपके रिकॉर्ड्स मुझे बताओ, पहले हिस्ट्री बताओ आपकी क्या है। और डॉक्टर अनुराग को कभी पता नहीं होगा कि मैं कभी चिंतन हॉस्पिटल जाती थी या नहीं जाती थी, उसको Correct. कोई आइडिया कभी भी नहीं होगा, इवन दो हम अपना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी शेयर कर देंगे। तो डॉक्टर अनुराग विल जस्ट रेज अ कंसेंट, और मैं एज अ पेशेंट अप्रूव करूंगी, मेरी मर्जी है, मैं 6 महीने का करूं या ना करूं, 2 दिन का करूं, वो पेशेंट पे है, राइट? मैं अप्रूव करूंगी तो वो रिकॉर्ड सारा पुल होके डायरेक्ट फ्रॉम चिंतन हॉस्पिटल टू डायरेक्ट अनुराग हॉस्पिटल आ जाएगा, बीच में NHA का कोई लेना देना ही नहीं है इसमें, Oh, राइट? तो ये भी आपका प्रोवाइडर एंड भी इसमें है एट द सेम टाइम विद द इंटरवेंशन ऑफ पेशेंट। व्हाई? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स द पेशेंट्स रिकॉर्ड, सो पेशेंट्स कंसेंट इज रिक्वायर्ड, विदाउट पेशेंट्स consent. कंसेंट आपको नहीं मिल सकता है, राइट? तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो PHR इज मोस्टली ऑन द PHR विल बी ऑन द पेशेंट साइड, वेयरएज जो आपका जितना इम्प्लीमेंटेशन फ्लो है वो आपके प्रोवाइडर साइड पे होगी, या आपका जो प्रोवाइडर का सॉफ्टवेयर है, चाहे वो HMIS हो, LMIS हो, उस साइड से। डज दिस आंसर योर क्वेरी? Yes. ओके। Thank you. विनोद जी, आपको कुछ पूछना है क्या? Anyway, is there any other Chintan, you okay, there is Yeah, any other? yeah, ma'am. I have a one query. बोलिए। मैम, क्या PHR ऐप डाउन है क्या आज मॉर्निंग से? जस्ट पूछना था बिकॉज वी आर फेसिंग सम इशू इन द PHR ऐप। नहीं, PHR ऐप डाउन नहीं है, पुल रिकॉर्ड में कुछ इशू फेस कर सकते हैं आप, PHR में डाउन नहीं है। हाँ हाँ, एंड करेक्ट लेट अस करेक्ट, पुल कॉन्सेप्ट, रिकॉर्ड में, हाँ, तो पुल आप रिकॉर्ड थोड़ा में सा वी जब आर फेसिंग। स्टेटमेंट देते हैं ना तो उससे ब्लाइंड सॉरी सॉरी। स्टेटमेंट ना दिया करें। ओके ठीक ओके। है, चलिए। हाँ अर्जुन जी बताइए। Okay, so test cases, right? When अर्जुन, यू आर फ्रॉम अहम, राइट? yeah. सो वी तो हैव एक बार प्लीज क्वेरीज को पूरा एक बार में ही क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। नहीं, राइट। there was no one with the किसने नो raise नो, hand नहीं अदर्स है, लाइक प्रीतम सिंह जी हैं केयरफ्लेक्स से, उनका अभी नंबर ही नहीं है। रमेश है। one last query, just this, उसके बाद में ओके लास्ट में अगर रहेगा टाइम तो आई विल पुट इट, ओके? सो व्हेन कोई यूजर अगर अपना आबा डीएक्टिवेट करता है, ओके, सो इन दैट केस जैसे PHR ऐप से वो ऑप्शन है कि हम लोग को डीएक्टिवेट करने के लिए, सो वी कैन क्लियर ऑल द कंसेंट एंड ऑल दोस फ्रॉम आवर डेटाबेस ऐसे करके? नहीं है। नहीं, इसका आपको मेल डाला है आई थिंक चिंतन। सॉरी? Anyways, आपका मेल डाला है आई थिंक सचिन ने। नहीं हाँ है। नहीं, वो अनलिंक वाला था, दैट्स अनलिंक वाला था। ओके 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 ये ओके। ये ये डीएक्टिवेशन वाला है। नहीं 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 नहीं, अभी ऐसा कुछ फीचर्स नहीं है इधर से, हमारे इधर से। ओके, गॉट इट, श्योर, थैंक यू। थैंक यू थैंक just for the benefit of all participants, please note जो deactivation है ना, this is currently only patient's authority to deactivate। HMIS को ये अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि वो किसी की PHR एड्रेस को या आभा एड्रेस को डीएक्टिवेट कर पाए। तो आप वो कोशिश ना करें इम्प्लीमेंट करने की अपने सॉफ्टवेयर में। सो रमेश, आई सी प्रीतम,
Preetham, do you have any queries from CarePlix, is it? Yeah, we have one. So please share your client ID. I don't have your client ID. Meanwhile, Ramesh प्रीतम एक and चीज Bittu और have क्लेरिफाई entered. कीजिए, आपका ना जो मेल आता है या फिर डेव फॉर्म पे आता है तो मल्टीपल एंटिटीज के साथ आ रहा है, तो कभी लाइक अभी आपने आज नाम कुछ अलग लिख रखा है, तो आपका प्रोडक्ट का नाम क्या है और आप आई हैव लाइक हाँ मैंने मेंशन कर दिया है इस चैट में, केयर नाउ हेल्थ केयर आएगा। आपने एक ही क्लाइंट आईडी ले रखी है कि मल्टीपल ले रखी है? ओनली वन। आपका एंटिटी का नाम क्या है? केयर नाउ हेल्थ केयर। तो आप ये प्लीज एक ईमेल लिखिए integration.support को वेरी क्लियरली इन ब्लैक एंड व्हाइट कि ये मैंने एप्लीकेशन इस एंटिटी नाम से स्टोर किया था और ये मेरी क्लाइंट आईडी है, क्योंकि आपको दिक्कत ना एग्जिट में होगी। जब आप एग्जिट करोगे आपको एफटी रिपोर्ट अपलोड करने पड़ेंगे, वासा करना पड़ेगा। तो आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है एज केयरफ्लिक्स, राइट, बट एफटी एंड ऑल रिपोर्ट में आपके एंटिटी नेम गलत होंगे, सो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू. You will have problem then. So please make sure you have your entity name because you will need to submit your GSTIN etc. So please ensure you follow it correctly. Okay? आप एक email लिखिए integration.support को, हम entity change ऐसे नहीं करते हैं, but if you want to change your entity, please share your GSTIN number. जो नया Actually, our entity name is itself Care Now Healthcare in Sandbox Forum as well. So please, okay, if it is whatever your client entity name is, please make sure your all artifacts are addressing or it is pointing to the same entity name. That's all I wanted to say, है ना? Okay, sure. ठीक है? मेरा क्वेरी था कि मैंने अभी अभी देखा कि M2 के लिए V3 APIs भी रिलीज हो गए हैं इन डॉक्यूमेंटेशंस, बट जब मैं पोस्टमैन डाउनलोड कर रहा हूँ तो उसमें एक ही APIs शो कर रहे हैं। तो क्या मतलब V3 APIs अभी रिसेंटली रिलीज हो रहे हैं कि अभी और भी होने बाकी है? अभी अभी V3 M2 के लिए नहीं है। आप क्योंकि M1 के लिए M1 को माइग्रेट कर सकते हो अभी के लिए। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन से V3 के APIs आ चुके हैं, मैंने देखा उसमें। अभी ना हमने एक पायलट लॉन्च किया था जिसमें कुछ इंटीग्रेटर्स उनको ट्राई कर रहे हैं इंटीग्रेट करने का, जो ऑलरेडी जो लोग इंटीग्रेटेड हैं। ओके हाँ, तो अभी ना हमारे पास कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है कि इट विल वर्क सीमलेसली, राइट? सो आप मत हाँ फॉलो कीजिए, जैसे हाँ सचिन जी बोल रहे हैं ना, तो प्लीज V3 यूज ओनली फॉर M1, क्योंकि आप देखिए हम नया वर्जन इंट्रोड्यूस करते रहेंगे अपने फंक्शनैलिटी एनहांस करने के लिए एंड टू मेक दी प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इजियर। तो हम वर्जन तो नए लाते रहेंगे, बट जब एक नया वर्जन आता है जो एंटिटीज जिन्होंने V1 से किया है या V2 से किया है, तो वो तो वापस से नहीं ना करेंगे इंटीग्रेट, राइट? We have to ensure that the business does not stop, so we have to make sure कि backward compatibility रहे, isn't it? तो अभी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं, हमने पूरा कंप्लीटली 100% हमारा अभी टेस्ट नहीं हुआ है। तो जब तक हम आपको लिख के ना दें कहीं पे भी कि आप V3 फॉलो कीजिए, तो आप प्लीज मत फॉलो कीजिए V3, प्लीज फॉलो V3 फॉर ओनली M1। फॉर M2 एंड M3 जो आपको वर्जन दिए हुए हैं, ओल्डर वर्जन V0.5 में, V1 V2 जिनको हम बोलते हैं, आप प्लीज वही फॉलो कीजिए। This is for all the participants. Please do not use V3 for PHR or M1 or for M2 or M3. Please do not use that. Okay. There is no change in the functionality. We are just trying to, जैसे अगर V1 V2 में आप 6 APIs use कर रहे हो, we are trying to ease the process and give you only 4 APIs or 2 APIs, right? And make the process more seamless. So ऐसा कुछ भी नहीं है. आप please proceed with the way you are being guided, the way, and please be in connect with NHA team all the time, so that आपको कहीं कोई gap ना हो, right? Okay. सचिन आप पूछ रहे थे रमेश है कोई, कौन रमेश है? I think he has logged off.
इज देयर एनी अदर क्वेरी? अगर नहीं है किसी को तो देन वी विल टेक दिस कॉल फॉर क्लोजर। जस्ट 5 मिनट्स हम आपको कुछ और अपडेट दे देंगे एक हमारे हेलो इंटीग्रेशन से, एंड देन वी विल क्लोज दिस कॉल। हेलो हेलो। बोलिए अनुराग जी। हाँ निखिल जी, मैं ये कह रहा था, ये टेस्ट केसेस क्या ऑनलाइन भी हैं अवेलेबल? ऑनलाइन एप्लीकेबल है मतलब? मतलब मैं टेस्ट केसेस जैसे मैंने स्टार्टिंग में डाउनलोड किए थे, क्या अपडेटेड टेस्ट केसेस भी हैं क्या M1 M2 M3 के? आप एक बार, आप अभी M1 ऐप पे, आप M1 किससे कर रहे हो, V1 से कर रहे हो या V3 से कर रहे हो? अब ये तो मुझे नहीं इतना आइडिया है, अगर वो है कोई नहीं, नहीं, कहीं पे टेस्ट वेबसाइट पे केसेस। है, मैं एक बार लिंक डाल देता हूँ। वेबसाइट पे हाँ बस अपडेटेड वो है। लिंक आप हाँ दे नहीं दीजिए। नहीं अनुराग जी, आपके पास सिस्टम है तो आप खोलिए, बाकी पार्टिसिपेंट्स भी देखेंगे। आपको लिंक हम लोग हमेशा भेजते हैं, हमेशा मिस हो जाता है, ये क्वेश्चन हमारे मैंने पास बार बहुत बार। दिन पहले डाउनलोड कोई किए नहीं, थे आप खोलिए, एक्चुअली। कोई नहीं, सैंडबॉक्स कोई खोलिए, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ सैंडबॉक्स आपको। खोलिए, स्क्रीन शेयर कीजिए। लॉग इन करता हूँ। Just a minute। जब तक अनुराग जी अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, एंड किसी और को कोई क्वेरी है अपार्ट फ्रॉम दिस टेस्ट केसेस? कोई क्वेरी है तो बताइए। आई सी शुभोदीप इज देयर, विनोद इज देयर। व्हाट आर द एंटिटीज यू आर रिप्रेजेंटिंग हियर? अगर आप शेयर कर दें। आई सी मनोज इज देयर, आमिर इज देयर। So I am from Kokoro Bharat only. Anurag is representing me from tech side. Okay, okay. So Subodip, Hi, I'm from Satwa Consulting. I've joined in to learn in. Yeah. okay, okay. अनुराग जी गो टू, पहले तो आप अपकमिंग सेशन में जाइए। हाँ, ये ना सब पार्टिसिपेंट्स को आई एम जस्ट ब्रीफिंग अगेन, प्लीज कीप विजिटिंग दिस वेब पेज। इस पे ना हम अपडेट करते रहते हैं, हम अलग से कोई नोटिफिकेशन अब किसी को नहीं भेजते हैं कि व्हेन वी आर होल्डिंग द सेशंस। सो प्लीज कीप एन आई ऑन दिस वेब पेज। अब आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए अनुराग जी, नीचे आइए। ये टेस्ट केसेस है और सबसे नीचे में पोस्टमैन कलेक्शन है, सबसे नीचे में। अगर ठीक है, चाहिए। ये आप बाद में देख लीजिएगा। आप ऊपर जाइए, फॉर न्यू पार्टिसिपेंट नहीं, थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आइए। ये देखिए आपका माइलस्टोन 1 2 3, थोड़ा ऊपर जाइए ना। ये माइलस्टोन 1 2 3 में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ना इसमें क्या वर्क फ्लोज होते हैं, क्रिएट, जैसे माइलस्टोन 1 में क्रिएशन होता है, क्रिएशन कैसे कैसे प्रकार से आप कर सकते हो, वेरिफिकेशन कैसे। तो आप प्लीज डॉक्यूमेंटेशन एक बार देखा करिए। आप डॉक्यूमेंट मोस्ट ऑफ द क्वेरीज, आई थिंक यू विल हैव टू डू अ लिटिल हार्ड वर्क एंड यू हैव टू पुट इन अ लिटिल एफर्ट टू अंडरस्टैंड द वर्क फ्लोज। क्योंकि हम देखते हैं कि ज्यादातर एंटिटीज को ना अवेयरनेस नहीं होता है, एंड दे डू नॉट गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन। आप थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन देखिए सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर अस एंड एज वेल एज फॉर यू। एंड ट्रस्ट मी, आप जो जो काम आप 4 महीने में खत्म कर रहे हो ना, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे और ये थोड़ा सा पहले से अपना से कर समझ के आओगे हमारे पास में, वो 4 महीने का काम ना 2 महीने में हो जाएगा। वी हैव हैड एंटिटीज वेयर इन द पीरियड ऑफ completion is reduced drastically। एक और में जाइए, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में वेबिनार्स है, हम यहाँ सेशंस अपलोड करते हैं। राइट, इतना ही मुझे बताना था। देयर इज वन मोर थिंग सबके लिए हम बता रहे हैं। व्हेन यू, ये वाला सेशन हम ऑलमोस्ट वी विल ट्राई टू पुट इट, have it every week, okay? every week, otherwise fortnightly once हम जरूर कर देंगे। हम जो जैसा भी होगा हम ये सेशन वहां पे अपलोड कर देंगे डिटेल्स। so please be ready with your queries, and please ensure your screen also is having that, so that immediately you can share the screen and show and walk us through the queries। नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, आप खोजते हो खोलते हो। So it takes a lot of time, so let us respect everybody's time, and please be prepared with your queries। दूसरा चीज मुझे बोलना है, once you complete your integration process, आपको ना एफटी के लिए एफटी एजेंसीज के पास जाना होता है। तो आज के डेट में वी हैव अबाउट 10 एजेंसीज एनएचए हैज एम्पैनल्ड। सो प्लीज नोट दीज एनएचए, दीज एंटिटीज। आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए, आई विल शो वेयर द एंटिटीज लिस्ट्स आर देयर। go to sandbox exit in Yes. documentation, come down, yeah, come down,
Sandbox exit. Click on. Yes. नीचे आइए, नीचे आइए, थोड़ा स्लो, बस बस, या और नीचे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे आइए, और नीचे आइए। देखिए ये एजेंसीज लिस्ट है, नीचे आइए। टोटल 10 एजेंसीज हैं जो आप किसी के पास भी एफटी के लिए जा सकते हैं। प्लीज नोट दैट दीज एजेंसीज आर ओनली फॉर फंक्शनल टेस्टिंग। एनएचए ने इनको किसी और चीज के लिए पैनल नहीं किया है। अगर आप उनको अप्रोच करते हैं फॉर अदर पर्पसेस देन दैट इज बिटवीन यू एंड द एजेंसी, राइट। एंड आप थोड़ा ऊपर जाइए, ऊपर जाइए। हमने ना स्टेप 3 में, नहीं स्टेप 3 में, हाँ स्टेप 3 में नहीं, ऊपर जाइए। स्टेप 2 में ये जो गो टू द लिंक है, ये है लिस्ट ऑफ सर्टेन एजेंसीज जो आप वासा करेंगे, ठीक है। टोटल 150 एजेंसीज हैं। ये डायरेक्टली आपको सर्टेन की वेबसाइट पे लेके जाएगी, तो आप कोई भी एजेंसी को अप्रोच कर सकते हैं वासा के लिए। ओके, आई थिंक वी डू नॉट हैव एनी मोर क्वेश्चंस। Preetham, why have you raised your hand? Just because I have gone through with the sandbox dev forum and it is not working. I know dev forum में थोड़ा सा कुछ इशू है, आज से नहीं हो गया, there's some time it's not Yeah. working. Yeah, Yes. I understand Preetham. Okay. Arjun, you have another query? No. Yeah, ma'am. Yeah. बोलिए। So okay, so जो टेस्ट केसेस है राइट, इसमें आबा वेरिफिकेशन वाला जो पार्ट है, देयर इज अ यूज केस की उसमें एक मेंशन है फंक्शनलिटी के अंदर, मल्टी ऑथेंटिकेशन फीचर आल्सो नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड लाइक कैप्चा आप पेपर। दिखाइए, एक बार दिखाइए इसको। श्योर आई विल बी। कौन है ये? स्क्रीन विजिबल है सबको? हेलो? हाँ जी, या सो visible. यहाँ पे मल्टी ऑथेंटिकेशन फीचर आल्सो नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड लाइक कैप्चा पेपर। हाँ बिल्कुल, आपके सिस्टम के लिए मैंडेटरी है ना कि आप यू डोंट वांट योर सिस्टम टू बी सिक्योर्ड, हाँ, या वी डू। so then you should have some kind of authentication done, right? ओके या तो अगर आप क्लाउड पे हो तो आईएम यूज करते हो, या आप कैप्चा डालोगे, या यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन इन ऑर्डर टू एंश्योर मेक योर सिस्टम सिक्योर। ये सब सिक्योरिटी कंसर्न्स है। देखिए एट द एंड ऑफ द डे कल को more and more stakeholders will be there on the AVDM's ecosystem, right? And with this data privacy policy getting more and more stringent, you have to be very careful at every stage, isn't it? ओके। And you are also submitting undertaking, right? So it's very important that at every step of point you have to ensure that your VASA is valid at any point of time. You have to ensure all the security measures are in place. Got it. Okay. Okay, so if you don't have any more queries, we would like to close this call. We will again update please keep a eye on the upcoming sessions web page. We will upload the session details again there. Meanwhile, if you still have some queries which is not answered, or it is not yet clarified, feel free to write at integration.support@nha.gov.in. Thank you and have a great day. या मैं वन लास्ट क्वेश्चन जस्ट ओके। सो जब M1 में हमको जो कंसेंट दिखाना है, ओके, जो टेक्स्ट वो कहाँ से हमको कॉपी पेस्ट करना रहेगा? नहीं, M1 के अंदर कंसेंट्स नहीं होते हैं। अरे कैन यू रिपीट? नहीं, कंसेंट जो हम अप्रूव करते हैं ना, टर्म्स एंड कंडीशन वाले। हाँ, या एग्जैक्टली करेक्ट। अच्छा, वो आपको जहाँ पे आप आधार की डिटेल्स ले रहे होंगे ना पेशेंट से, उस पेज पे दिखाना है। हाँ नहीं, बट वो एक्चुअल कंटेंट क्या होना चाहिए वहाँ पे? इज देयर एनी टेम्पलेट जो ऑलरेडी बना हुआ, तो वी कैन हाँ, कॉपी पेस्ट? वो आप एक बार इंटरनेशनल.support पे लिख दीजिए, वी विल प्रोवाइड यू। ओके, गॉट इट। ठीक है, Okay, thank you all. Thanks Sachin, thanks Nitesh. थैंक्स अ लॉट। Thank you.